Hello students, in previous video we have discussed about cell wall and cell membrane of eukaryotic cell. In this video we will discuss about cell organelles. First of all we will study about membrane bound organelles. And membrane bound organelles are ER, Golgi bodies, lysosome, vacuole, mitochondria, nucleus, chloroplast. Chloroplast present only in plant cell, it is absent in animal cell. Remaining membrane bound organelles are present in both. अब ER, Golgi bodies, lysosome, vacuole, these membrane are coordinated. It means their functions are coordinated. So it is referred as endomembrane system. Endomembrane system means some cell organelles are interconnected. For example, ER, Golgi body, lysosome and vacuole. These four are interconnected. So we include in endomembrane system. If question asks, write the cell organelles which include in endomembrane system, and you will answer ER, Golgi bodies, vacuole and lysosome. First we will study our ER. Full form of ER is endoplasmic reticulum. Endoplasmic means कि it is present inside the cytoplasm. Reticulum means a network like structure. This is cell, this is nucleus, and from the wall of nucleus, ER form a network like structure. It is called endoplasmic reticulum. It always present near the nucleus. यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये अराइज हुए हैं. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो इसकी मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. ठीक है, लिपिड प्रोटीन की ही मेम्ब्रेन है. एंड इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है. When endoplasmic reticulum has ribosome, it is considered as RER, यानी राइबोसोम अटैच हो गए ER से, तो जो सरफेस होगी वो कैसी हो जाती है, रफ. Then it is named as rough ER, rough endoplasmic reticulum. But some ER, some part of ER lacks ribosome, so it makes SER. SER means smooth endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is of two types on the basis of presence of ribosome, RER and SER. RER राइबोसोम प्रेजेंट, तो अगर कोई स्मूथ सरफेस है और उस पर अगर कोई पार्ट प्रेजेंट है तो वो सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ. और विदाउट अगर ये कोई सरफेस है तो वो कैसी होगी, स्मूथ. तो राइबोसोम जो है ER विद राइबोसोम इज कॉल्ड एज RER और रफ ER, एंड विदाउट राइबोसोम ER इज कॉल्ड SER और स्मूथ ER. जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है यानी RER, उसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस. RER का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम जो. SER they are without ribosome, so they are related to lipid synthesis. Clear? SER perform lipid synthesis, RER perform protein synthesis. Now we will see what is the function of ER. फर्स्ट ऑफ ऑल ER का फंक्शन तो क्या है कि एक स्केलेटन दे रहा है, एक सेल को शेप दे रहा है. प्रोवाइड फ्रेम.
to the cell or provide shape to the cell. Second, protein synthesis. Third, lipid synthesis. And fourth is transportation. It is very important function. Transportation of these material, protein and lipid synthesis, also done by ER. Is it clear? तो फर्स्ट हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है ऑर्गेनल पढ़ा वो है ER. नाउ सेकंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल, दैट इज गोल्जी बॉडी. गोल्जी apparatus डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट, एंड उन्होंने अपने नेम पर ही इसका नेम दे दिया था इस ऑर्गेनल का, गोल्जी apparatus. गोल्जी बॉडी इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज़ ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द ER, यानी ER से ही ये फॉर्म होते हैं. और ये इनका जो नंबर होता है वो वेरी होता है एंड स्कैटर्ड इन गोल्जी बॉडीज, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. अब जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं वो फ्लैट शेप, डिस्क शेप, ट्यूबुल और स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं. जब ये फ्लैट शेप होते हैं, जो मेन है, अगर गोल्जी बॉडीज़ के टाइप देखें तो फर्स्ट जो टाइप है इसका सिस्टर्नी. सिस्टर्नी क्या होते हैं? ऐसे फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. इट इज़ टू सरफेस, कॉनकेव सरफेस जो स्लाइटली क्या है, केव लाइक है, एंड केव लाइक सरफेस है, एंड दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस. एंड ये क्या है? कॉनकेव सरफेस. इनका नंबर जो है 3, 4, 5 इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ये पैरेलल अरेंज होती हैं. कॉन्वेक्स जो सरफेस होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग सरफेस, फॉर्मिंग फेस और सिस फेस. whereas concave surface is called mature phase और trans phase. सेकेंडली, अगर ट्यूबल फेस में गोल्जी बॉडीज़ कैसे होंगी, देखिए जो ट्यूब शेप में होंगी और ब्रांच भी हो सकती हैं इस तरह से. जो ट्यूब शेप में है, ब्रांच भी है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबल. और वेसाइकल कैसे बनेंगी? जो स्फेरिकल जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, दे आर कॉल्ड एज वेसाइकल. सो वी कैन से गोल्जी बॉडीज़ आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट इज सिस्टर्नी, ट्यूबल, थर्ड इज वेसाइकल. वेसाइकल जो होगी वो स्फेरिकल फॉर्म में है, ट्यूबल ट्यूब फॉर्म में है, एंड सिस्टर्नी इस तरह से फ्लैट है. सिस्टर्नी हैज़ 2 सरफेसेस, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योर फेस. फॉर्मिंग फेस कौन सी है? कॉन्वेक्स जो है, और मैच्योर फेस कौन सी है? जो कॉनकेव शेप है, इस तरह से. और ट्यूबल और वेसाइकल का फॉर्मेशन किससे होगा? सिस्टर्नी से ही होगा. यानी ये जो है, सपोज ये जो मैच्योर हो गई, ये इधर से किसका फॉर्मेशन हो गया? सिस्टर्नी का, ये वेसाइकल का, इस तरह से ये वेसाइकल फॉर्म होगा. अब फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का? देखिए फंक्शन है कि ER ने अगर प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस किया है तो उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड आउटसाइड द सेल. तो सिक्रेशन का मेन रोल जो होता है वो गोल्जी बॉडीज़ के पास है, यानी सिंथेसिस बाय ER एंड सिक्रेशन डन बाय गोल्जी apparatus. क्लियर? तो अब वेसाइकल क्या करता है मेनली? देखिए वेसाइकल है एक पैकिंग का काम करता है कि जो भी इसके अंदर मटेरियल है, चाहे लिपिड है, प्रोटीन है, उनको पैक करने का वर्क करेंगे. जैसे ये ER मान लीजिए प्रेजेंट है, ये ER ने कुछ सिंथेसाइज किया, कोई भी लिपिड या प्रोटीन, ठीक है, ये मान लीजिए लिपिड सिंथेसाइज हुआ, वो किस में कलेक्ट हुआ? वेसाइकल में. पैकिंग हो गई, ये वेसाइकल इसी से फॉर्म हुआ था. अब ये कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये वेसाइकल बनती रहती है और इंटरकनेक्टेड ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं. और ये वेसाइकल जो है
ये लिपिड या प्रोटीन को लेकर सेल के मीडियम में, साइटोप्लाज्म में या फिर सेल के आउटसाइड ये रिलीज कर देती है, जो सिक्रेशन है. सो गोल्जी बॉडीज आर known as secretory factory because they secrete lipid, स्टोरेज लिपिड एंड स्टोर का भी वर्क कर रहे हैं बिकॉज ये पैकिंग, जो पैकेजिंग में जो डिलीवर करना है इन्हें साइटोप्लाज्म के अंदर या साइड आउटसाइड द सेल, तो इट इज़ ऑल्सो डन बाय गोल्जी बॉडीज. तो पैकेजिंग का भी वर्क है, डिलीवरी एंड सिक्रेशन जो हम कह सकते हैं. गोल्जी बॉडीज़ का किससे होगा फॉर्मेशन, किससे हुआ है? ईआर से. ठीक है, अब हम ये देखेंगे. देखिए ये कैसे इंटरकनेक्टेड है. ईआर ने फॉर्म किया है गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी. सिस्टर्नी से बने हैं ट्यूबुल. ट्यूबुल से फॉर्मेशन हुआ है वेसाइकल की एंड वेसाइकल मिक्स विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल. जो ईआर होता है उसका ये जो पार्ट होता है, ये स्पेस होता है, इट इज़ कॉल्ड ल्यूमेन एंड बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म. तो कई बार हम इस वर्ड को कह देते हैं इंट्रा ईआर, यानी इंट्रा ईआर मीन्स ल्यूमिनल पार्ट, एंड ये क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी ल्यूमेन की आउटसाइड पार्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो है लाइसोसोम. लाइसोसोम ऑल्सो फॉर्म्ड बाय दीज गोल्जी बॉडीज एंड ईआर. देखिए ये जो वेसाइकल है इनमें क्या है? या तो लिपिड होगा या प्रोटीन होगा. कई बार ये जो वेसाइकल जो बने हैं गोल्जी बॉडीज़ में, थर्ड हम लेबल कर देते हैं लाइसोसोम. वेसाइकल किसके पार्ट थे? गोल्जी बॉडीज़. तो ये जो वेसाइकल जो स्ट्रक्चर है इस तरह से स्फेरिकल, इनमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन. अब लाइसोसोम किसे कहेंगे? जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट है बट किस फॉर्म में है? एंजाइम फॉर्म में. अब बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स एंजाइम, और एंजाइम्स भी उनमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक मीन्स वो किसी सब्सटेंस का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे. हाइड्रोलाइसिस मीन्स उसे ब्रेक कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जो एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में वो हैं लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेज. कार्बोहाइड्रेज देखिए लाइपेज जो एंजाइम है वो किसको डिग्रेड करेगा? लिपिड को ब्रेक करेगा. प्रोटीएज एंजाइम किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा. न्यूक्लियस एंजाइम किसको ब्रेक करेगा? न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा. एंड कार्बोहाइड्रेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा. कार्बोहाइड्रेट को. सो बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम. अब लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग. सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं इसे? देखिए सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. जब ये एंजाइम रिलीज होते हैं किसी भी ये जो सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं तो इनका भी खुद का क्या हो जाता है? लाइसिस हो जाता है. और ये एंजाइम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम भी स्टोर करते हैं, दैट इज़ लाइसोजाइम. लाइसोजाइम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं. सपोज कोई सेल में बैक्टीरिया एंटर हुआ है, ये बैक्टीरिया एंटर हुआ है, तो फर्स्ट जो उनको किलिंग का वर्क होगा वो किसका होगा? लाइसोसोम का. लाइसोसोम क्या करेंगे? इनको एंगल्फ कर लेंगे इस तरह से. एंगल्फ करना मतलब उन्हें अपने अंदर ले लेना. इस तरह से अंदर ले लिया बैक्टीरिया को और उसे फिर क्या कर देंगे? फेगोसाइटोसिस करके एक्सोसाइटोसिस कर देंगे, यानी सेल के आउट थ्रो कर देंगे उसका ब्रेक डाउन करके. तो जब ये उसको डाइजेस्ट करते हैं तो इनका खुद का भी क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है. दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय अलॉन्ग विथ
bacterial cell and other microbe. So they are called as suicidal, because they contain hydrolytic enzymes which helps in digestion of the ये जो है biomolecules and bacteria. Clear? And lysosome formed from vesicle contain protein. Next, fourth endomembrane system organelle is vacuole. Vacuole is also membrane bound organelles. It contains water, sap, excretory product and other extra substance which are not used by cell, यानी जो यूजफुल नहीं है सब्सटेंस, दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल. अब वैक्यूल जो है वो टू टाइप्स की, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है या सैप प्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड सैप वैक्यूल. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फूड स्टोर है तो इट इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल. एयर प्रेजेंट है तो इट इज टर्म्ड एज एयर वैक्यूल. देखिए वैक्यूल जो है इट इज़ लार्ज इन प्लांट सेल एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन लोअर एनिमल सच एज अमीबा. अमीबा वाटर में रहता है और उसमें एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीशन का जो वर्क है इट इज़ डन बाय वैक्यूल. अमीबा की स्ट्रक्चर जैसे ये यहाँ पर अमीबा में जो ये वैक्यूल होती है विच स्टोर वाटर, तो ये वैक्यूल जो है वो लार्ज होती जाती है वाटर स्टोर करते करते, और जैसे ही ये मैच्योर, इसका जितना साइज होता है ये अटेन कर लेती है, आफ्टर दैट इट थ्रोज वाटर आउटसाइड द सेल. तो इस वैक्यूल को कहेंगे, यानी ये रेगुलेशन कर रहा है ओस्मो रेगुलेशन. ओस्मो रेगुलेशन मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर है इसने स्टोर कर लिया इस वैक्यूल ने, और जब उसने अपना साइज अटेन कर लिया तो इसने वाटर को कहाँ रिलीज़ कर दिया, आउटसाइड द अमीबा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है और इसने रेगुलेशन किया है वाटर का, तो इट इज़ ओस्मो रेगुलेटरी वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं इसे. तो वैक्यूल इज़ फाउंड इन प्लांट सेल एज वेल एज लोअर एनिमल्स. Its size is larger in plant cell than other. वैक्यूल also store excretory product, और जो प्लांट में ये प्रेजेंट होती है वैक्यूल, उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट. प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. इट इज़ इम्पोर्टेंट कि what is called membrane of vacuole, then you will write tonoplast is membrane of vacuole in plant cell. अब फंक्शन क्या है यहाँ पर ये जो वैक्यूल जो है इसका फंक्शन है जो सेल की टर्जिडिटी है, सेल जो वाटर एब्जॉर्ब करके उसकी जो शेप रहती है, टर्जिडिटी मतलब उसकी जो स्वेलिंग है वो मेंटेन रहती है. इट वैक्यूल मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल. और आयंस और ये जिसमें सैप प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, तो ये स्टोर का भी वर्क कर रही है. एंड आयन कई बार ट्रांसपोर्ट भी करती है. आयन ट्रांसपोर्टेशन, ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा, तो ये फंक्शन है वैक्यूल की. अब ये से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा, बिकॉज दीज जो इनकी मेम्ब्रेन जो है इट इज़, इनका जो फॉर्मेशन है ऑरिजिन है वो एक ही है. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से इंक्लूड किया. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, अदर ऑर्गेनल्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें, ER, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. सीक्रेटरी फैक्ट्री, गोल्जी बॉडीज, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम, जो ऑस्मो रेगुलेशन, वैक्यूल, and framework RER, SER, lipid and protein synthesis and transportation done by ER. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल
study about remaining cell organelles such as mitochondria, nucleus, chloroplast. Thank you.